Factors of production. For a country like India, the largest contribution to growth and productivity will probably come out from more efficiently using land, labor, and capital. Thus, they must be used more efficiently. Vivek Debaroy, she is a chairman Economic Advisory Council to the Prime Minister 2017 to 2014. Can that अभी recently हमने 6100 किलोग्राम का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया कल, है ना, श्रीहरिकोटा से हुआ है ये हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, इसरो ने कर दिया, राइट। वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए और ज़्यादा बेटर क्वालिटी, अभी कोई पूरे इंडिया में कहीं पर भी वीडियो कॉल्स हम करेंगे तो क्लैरिटी आपको रहेगी। तो ये काइंड ऑफ रिकॉर्ड है एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि लैंड को, ह्यूमन कैपिटल को, लेबर्स को हमें अच्छे से यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द प्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स, उसको बढ़ाने वाले क्या क्या है। शुरू करते हैं। यू कैन सी अ ग्लिम्स एट द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स। यहाँ पर कुछ गुड्स बनाए जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन की। कपड़े कोई सिल रहा है, कोई यहाँ पर कुछ फूड प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई पेपर बना रहा है, कोई अलग अलग काम कर रहे हैं, मशीनरी पे काम कर रहे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लोथ, शूज, स्कूल बैग, फर्नीचर, फोन, कंप्यूटर आर मेड? Every product around you goes through a production process before it finally reaches you. This production process involves using resources or inputs required to produce the final product. The resources or inputs used in producing goods and services are called factors of production. Define किया factors of production को? The resources or inputs used, social and cultural influences, a culture of hard work, continuous improvement and endeavoring to do things well has now talking about the social and cultural influences, a culture of hard work, continuous improvement and endeavoring to do things well has helped countries to move forward. There is a Japanese concept called Kaizen. ये नया है, पहले नहीं था, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है। क्या है कि कंटिन्यू किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करते रहे, विच मीन्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अप्लाइड इन जापान सिंस मिड 1940s एंड हैज़ हेल्प्ड जापान अचीव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल। तो जापान में जो काइजन फॉलो करते हैं, इसी की वजह से जापान में आप देखिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि लोग वहाँ पे कंटिन्यूस हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल कुड बी ऑफ दैट ऑफ जर्मन वर्क एथिक which is deeply rooted in their history. Germany is renowned for its high quality industrial output. They place high value of punctuality, attention to detail and quality. These qualities of their human capital contributed to their rise as a global leader in technology and manufacturing. दो एग्जाम्पल जर्मनी और जापान के उन्होंने दिए हुए हैं। Let's do a small experiment. Make a list of 10 working adult in your family and neighborhood. Ask them to describe the culture at the workplace. Share notes. What do you discover? What are some adjectives that occur more frequently? In the tapestry chapter, you have seen example of art and architecture in India across several centuries. What do you think are the factors that enabled the creators to achieve such high levels of excellence? तो जो अलग अलग तरह के आर्ट और आर्किटेक्चर, जो टेम्पल्स हमने देखे हैं, उसके बारे में करें। लोग इतने वर्ल्ड लेवल इम्प्रेसिव कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए। प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी टू डू मोर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज प्रोडक्टिविटी। Adult literacy rate, percentage of people aged 15 and above who can read and write with understanding a short simple statement about their everyday life, that is adult literacy rate है कि percentage of people जो 15 साल से ऊपर के हैं, जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनकी proper understanding है, अपने लाइफ के बारे में प्रॉपर वो लिख सकते हैं, अपने बारे में काम कुछ को डिफाइन कर सकते हैं जो काम वो करते हैं। Moving further, challenges to human capital. Our nation has come a long way in various aspects of human capital since independence.
ये बात कर रही है कि जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से हमारा जो देश है वो बहुत ही आगे आ चुका है ह्यूमन कैपिटल के टर्म में. जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब लिटरेसी रेट कम थी, मोस्टली एग्रीकल्चर करते थे, पर आज हर तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अभी आ गए. लिटरेसी इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एंड हेल्प एनहांस द स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. The adult literacy rate in India is 85% for males and 70% for females as of 2023. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, adult literacy rate मेल्स का क्या है, फीमेल्स का क्या है. As per the World Bank estimates, despite progress in many area, India faces challenges in developing human capital. लेकिन अभी इतना सारा हमारा लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी हमारा ह्यूमन कैपिटल उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया जितना इसे होना चाहिए. Shivai, a student of Saraswati Vidyalaya, immediately to drop out of school 2 years back at his father's lost his job. How do you think the loss of schooling years will affect Shivai when he grows? वो क्लास 8 में था, नौकरी छोड़नी पड़ी और पापा की नौकरी चली गई तो उसको स्कूल छोड़कर अब वो आगे जाके क्या करेगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर भी वो लेबर टाइप का ही कुछ उसको काम करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024, 65% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स. इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट? 65%, 35 से कम है. This means that India has a young productive population which may help the country reap the benefits of a demographic dividend. अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर यंग लोग आपके देश में हैं इसका मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा आप इनोवेशन कर सकते हैं. The demographic dividend refers to the benefit a country gets when it has a large number of young and working people. तो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यंग पीपल और वर्किंग पीपल बहुत ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. मतलब एज की वजह में प्रॉफिट होगा, यंग लोग हैं ज़्यादा. When more people are working and earning and fewer people depend on them, the country can grow business and improve living standards. To take advantage of this potential, individuals must have access to quality education. अब ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास यंग लोग हैं, हमारे पास यंग एज की पॉपुलेशन है, लेकिन अब उसको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको हमें प्रॉपर हेल्थ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनकी स्किलिंग करनी पड़ेगी, which would contribute to the nation's progress. You will learn more about this in the year ahead in the chapter on demographics. आगे जब इस साल तो नहीं है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे डेमोग्राफिक्स के बारे में. नेक्स्ट, are some jobs more important than others? What would happen if nobody cleaned the streets, collected the trash, farmers stopped cultivating the crop, doctors were not available to treat patients and so on? Today there is a vast variety of job requiring different kind of skills. However, India has a rich legacy of skill based knowledge system and workmanship. तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अलग अलग तरह के काम हैं. कुछ काम जो होते हैं उनको हम लो वैल्यू वर्क बोलते हैं, लेकिन वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. और हमारे कंट्री में तो स्किल बेस्ड जो नॉलेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाईली स्किल्ड लोग हम हैं, लेकिन उसको और थोड़ा डेवलप करने की बात चल रही है. India's ancient skill heritage. For ancient Indians, work was a form of expressing their nature and striving for perfection. Ancient period में कैसे हम वर्क को डेडिकेटेड थे, हम बहुत डेडिकेटेडली हम काम करते थे. An offering to the deity or the receiver as the case may be. It had to be created or done with devotion. हम जो भी काम करते थे बहुत डिवोशन से कर सकते. The tool, a type of technology used were worshipped. हम अपने जो भी टूल्स से काम करते थे उनकी हम पूजा करते थे. दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज एज विश्वकर्मा पूजा और अयुध पूजा. सो क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व अ यूनिक ब्लेंड ऑफ काला एंड विद्या. Knowledge was passed on from generation to generation and also built on. The Shilp Shastra are ancient texts that contain detailed design guidelines on sculpture. तो ये बता रहे हैं कि हमारे कंट्री में एंशियंट पीरियड से ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन से काम करना चाहते हैं. जो हमारे टूल्स हैं उनकी हम पूजा करते हैं. शिल्प शास्त्र में पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, वुडन आइटम्स, ज्वेलरी, इन सब के डिज़ाइनिंग के बारे में बात है. फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट ऑन स्कल्पचर प्रिस्क्राइब एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस रिगार्डिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, कलर क्या होने चाहिए, मेजरमेंट क्या होने चाहिए, फिगर्स के प्रपोर्शन. तो ये शिल्प शास्त्र में सारा कुछ बताया हुआ. सो बेसिकली दे आर गिविंग अ रिलेटिव कंपैरिजन कि एंशिएंट पीरियड से ही हम लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली काम करते आए हैं. जनरेशंस ऑफ फैमिलीज ऑफ स्कल्पचर्स हैव वर्कड ऑन कंस्ट्रक्टिंग इंडियाज टेम्पल्स ओवर सेंचुरीज. इंडिया इज अ लैंड ऑफ टेम्पल्स. They used their skills without expecting to see the finished outcome.
They pursued excellence, considering work as worship by practicing regularly and learning new टेक्निक्स. तो पुराने ज़माने में लोगों ने जो टेम्पल बनाए हैं वो क्या परफेक्शन को अचीव करने के लिए बनाए. Stitched shipbuilding. Indians used a unique stitching technique dating back over 2000 years to make ships and boats, which they used to conduct maritime trade. ये पानी के जहाज से जो बिजनेस करने के लिए जो बोट बनाते थे उनकी स्टिचिंग करते थे. एंड कल्चरल एक्सचेंजेस अक्रॉस इंडियन ओशन. द टेक्निक इन्वॉल्व स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स टुगेदर यूजिंग कॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ नेल्स, which made them flexible and helped the ships navigate the Indian Ocean with ease. तो हम क्या करते थे, हम हमारे जो बोट्स बनाते थे उसको हम स्टिच कर देते थे कॉर्ड यूज़ करके. हम उसमें कील नहीं लगाते थे और उससे क्या वो फ्लेक्सिबल रहते थे. इंडियन ओशन में आराम से वो फ्लोट करते थे और हम अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच के हम अपना बिजनेस वगैरह कंटिन्यू करते थे. ये फ़ोटो SBI का तो पुराने टेक्स्ट NCERT से ही लिया हुआ है. Many of the traditional techniques of production have either disappeared or online. तो पुराना जितना भी आर्ट फॉर्म है या तो ख़त्म हो चुका है या कम हो चुका. फॉर एग्जाम्पल द स्टिचिंग ऑफ शिप्स सॉ अ सीवियर डिक्लाइन आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन द इंडियन ओशन इन द 16th century. क्वेश्चन बन सकता है कि स्टिच की शिपिंग कब बंद हुई या कब डिक्लाइन हुई. जब यूरोपियंस आए 16th century में, उसके बाद ही कम हो गया. दिस टेक्निक इज़ नाउ यूज्ड फॉर स्मॉल फिशिंग बोट. Why do you think the use of indigenous technique has declined? Find out some techniques and products from your region that showcase human effort and skill. Now talking about the capital. Businesses also require capital that comprises monetary means related to money, monetary resources and durable assets like machinery, tools, equipment, vehicles, vending carts, computers, shops, factories, office buildings. ये सभी के लिए पैसे चाहिए हमें for the day-to-day operations. Just as Ratna would have required money to take the land on lease. रत्ना जब अपना रेस्टोरेंट चलाया था तो उसे लैंड चाहिए था रेंट पे. Buy the furniture, kitchen equipments. These are called capital. तो money plus human made resources that are used to produce goods and services. तो capital मतलब सिर्फ पैसा नहीं, human capital भी plus money भी चाहिए. Capital in economics, any asset whether physical or financial used to produce good or service. Capital मतलब फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, मनी हो या पर्सन हो, दोनों मिलाकर कैपिटल बनेंगे. कैपिटल इज एसेंशियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज. बट वेयर डू बिजनेसेस गेट द कैपिटल? तो ये कैपिटल हमें कहाँ से मिलेगा? ये मशीनरी बन रही है, आप देख रहे हैं, ये SBI है, ये लोन देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो दे गेट इधर पैसे कहाँ से मिलेंगे? या तो पर्सनल सेविंग्स करके रखे हो, या तो फैमिली से मिलेगा, या तो फ्रेंड से मिलेगा. दे आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस. जस्ट एज रत्ना डिड व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस. हाउएवर द फंड्स वर इनसफिशिएंट फॉर रत्ना टू स्टार्ट द बिजनेस, सो शी टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू मीट द शॉर्टफॉल. तभी क्या करना पड़ेगा? आपके पास अगर उतने पैसे नहीं हैं तो आपको क्या करना होगा? लोन लेना होगा और लोन पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. शी पेड इंटरेस्ट along with the part of her loan amount over a period of time. Similarly, large companies require a lot of money to expand their business. Hence, they raise money from the general public through stock market. तो भी बड़े बड़े बिजनेस है, उनको भी अपना बिजनेस चलाना है तो पैसे चाहिए. कहाँ से पैसे लेंगे? स्टॉक मार्केट से लेंगे. The stock market is a special type of market where shares are bought and sold. Large companies raise money from the public by offering them a share of the profit called a dividend. अभी ये सारे टर्म्स नए हैं, पहले नहीं थे, पूछे जा सकते हैं कि भाई जब कंपनीज मनी रेज करके बदले में क्या देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को? तो डिविडेंड देती है. इन अदर वर्ड, बिग बिजनेसेस कैन रेज मनी और फाइनेंशियल कैपिटल थ्रू सच अ मार्केट एंड कैन सेल शेयर्स ऑफ देयर बिजनेस. तो अपने बिजनेस के शेयर्स बेच सकते हैं और जो भी उनके शेयर्स को खरीदेगा उन्हें अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाएगा. You will learn the exact mechanism of how this works in the higher grades. इंटरेस्ट और डिविडेंड को डिफाइन किया हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए. साइड में जितने भी दिए हुए टेक्स्ट बुक में सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं.
The amount of money paid by the borrower of the loan to the lender using their money for the specific simple interest, compound interest में देखा हमने, interest या dividend, ये important है. An amount of money paid regularly by a company to the shareholder out of its profit. तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसमें से एक पार्ट जो कंपनी डिसाइड करेगी वो अपने शेयर होल्डर्स को वो देगी. छोटा सा एक्सप्लोर करने की बात है कि अपने आसपास के रीजन में आप एक्सप्लोर करिए बिजनेस को, कि उसमें कितना कैपिटल लगता है फैक्ट्री बनाने के लिए, इक्विपमेंट क्या लगते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स से क्या बनाते हैं. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब so defining the entrepreneurship is starting your own business or creating something which is going to solve the problem of a community or a specific sector of the people. An entrepreneur is a person, ये पीछे आप देख सकते हैं ये बैम्बू से बास्केट्स बना रहे हैं, इधर ये प्रोसेस्ड फूड आइटम्स बना रहे हैं. You can see this is a beautiful pottery work, chemical plant. So entrepreneur is a person who comes up with idea, takes this, gather other factors of production and works hard to make their startup idea successful. A startup is an entrepreneurial venture with limited resources that aims at rapid growth and expansion while leveraging technology. Startup मतलब it's not a small business. Startup actually means you should have some unique idea, some different idea. That will be a startup. आगे लिखा है an entrepreneur's vision for solving a problem helps bring innovative products and services to the market that benefit society and the nation. तो एंटरप्रेन्योर का ये काम है कि कुछ प्रोडक्ट लेकर आए जिससे सोसाइटी की या कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो. At the same time, they also create job opportunities and support livelihoods. In return, they derive a deep sense of satisfaction from seeing their dreams become a reality and serving the people. तो कह रहा है या तो वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, लोगों को इसी प्रोसेस में नौकरियां भी दे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करे, प्लस एक उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बने, अपने बिजनेस को वो रियलिटी बनता हुआ देखे. टास्क परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम एंड इज रेजोल्यूट टू सॉल्व इट विथ एन इनोवेटिव सॉल्यूशन. कि कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जैसे देयर आर मेनी प्रॉब्लम एक्चुअली. अभी आप देखो तो ई वेस्ट इज़ अ प्रॉब्लम, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है दैट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड देन यू कैन सी दैट AQI इज़ अ प्रॉब्लम, so air quality is a problem. So if you look at the problem, there are many problems. So you should actually be working on कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हम कुछ काम करें, इसको हम सॉल्व करें. तो पहला हो गया ये स्टेप, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड इज रेजोल्यूट टू सॉल्व. टेक रिस्क बाय इन्वेस्टिंग मनी एंड टाइम. सेकेंड. थर्ड, मेक्स की डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ हिज और हर बिजनेस. डिसीजन ले, कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, contributes to the welfare of society with his or her innovation. The man who dreamed big for India. J.R.D. Tata, entrepreneur, industrialist and philanthropist. Philanthropist means जो दान दक्षिणा करते हैं, जो सोसाइटी में बहुत सारा जो चैरिटी वगैरह करते हैं. जहांगीर रतन जी दादा भॉय Tata was one of the India's greatest entrepreneurs and played a big role in building modern India. ये हमने डिस्कस किया पहले हिस्ट्री में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कैसे वो आए, उन्होंने सर्च किया सारा एरिया. He was born in 1904 and became the head of the Tata Group. He believed that business should not only make money but also help society. He started India's first airline, Tata Airlines. टाटा एयरलाइन को ही इंडिया ने कैप्चर कर लिया, वापस टाटा ने ले लिया in 1932, which later became Air India. क्योंकि ऐसा हो गया था कि एक प्राइवेट ग्रुप के पास, हमारे इंडिया में प्राइवेट ग्रुप के पास एयरलाइन था, कंट्री के पास नहीं था. तो टाटा ने कंट्री को दे दिया कि नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि टाटा का एयरलाइन है और कंट्री का नहीं है, तो टाटा ने एयर इंडिया बना दिया. अंडर हिज लीडरशिप द टाटा ग्रुप एक्सपैंडेड इनटू मेनी एरिया लाइक स्टील, कार, पावर, केमिकल. JRD टाटा वाज आल्सो नोन फॉर केयरिंग अबाउट हिज वर्कर एंड बिलीव्ड इन प्रोवाइडिंग देम विद गुड वर्किंग कंडीशन.
He was a man of vision, hard work, honesty. In 1992 he received the Bharat Ratna, India's highest civilian award for his great service to the. क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, अलग से दिया हुआ है पूरा एक पैसा पैराग्राफ. What could be the lessons for young and does the existing knowledge of entrepreneur help in finding solution to the problem at hand? Is the profit the only motivation for an entrepreneur? What are the other personality trait required to be a successful entrepreneur? Entrepreneurship के बारे में बात चल रही है कि क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए. टेक्नोलॉजी नाउ फाइनली मेजर तो नहीं है लेकिन फैसिलिटेटर है. इट्स ए अनेबलर ऑफ प्रोडक्शन में, चीज़ों को जल्दी करने में, क्विकली करने में, एफिशिएंटली करने में हेल्प करेगा. टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. वेरी गुड, डिफाइन किया है. एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज को टेक्नोलॉजी डिफाइन किया है. फॉर एग्जांपल, अ कैमरा कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज. कैमरा की वर्किंग बता दी इन्होंने एक लाइन में. एनी प्रोडक्शन रिलेटिविटी यूजेस सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी. Some early forms of technology that have existed since ancient times are still in use today. Today, newer and advanced technological developments are applied, which makes our life easy. For example, payments can be made on the click of a button through UPI, Unified Payment Interface. पूछ सकते हैं इसका full form क्या है UPI का. Farmers can get weather updates. Global positioning system can discover the शॉर्टेस्ट रूट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सो ऑन. ये बात चल रही है यहाँ पर ड्रोन वगैरह से कैसे वो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, इरीगेशन कर रहे हैं. यहाँ से ये मेडिकल एडवांसमेंट, रोबोट असिस्टिंग इन सर्जिकल प्रोसेस, ड्रोन स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स. हैव यू नोटिस्ड हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट रिप्लेस्ड बाय न्यू? This process makes it easier for people and businesses to get things done and improve how they work. For example, instead of sending letters by post, we now use email to communicate with people quickly and at a lower cost. पहले हम चिट्ठियाँ लिखते थे, बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं. However, remember that technology progresses does not always mean replacing old technology. Some like pulley and wheelbarrows are still in use. तो कह रहा है हमेशा ही ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस नहीं करते. फिजिकल कॉन्सेप्ट्स है जैसे पुली है, व्हील बैरो है, उनको आज भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस. Now talking about the uses of the old technology that is still in practice. ये जो व्हील बैरो आपने देखा होगा, ये जो अनयूज्ड प्रोडक्ट है कंस्ट्रक्शन साइट पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. और ये पुली सिस्टम जो बोट में आज भी हम है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी लेकिन यूज हो रही है. तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें. टेक्नोलॉजी being the way for assessing knowledge, skills and job opportunity. A variety of online courses are available to students through government platform like Swayam. बन सकता है स्वयं का फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड. इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. विच ऑफर कोर्सेज फॉर ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स एंड ऑपरेट्स ऑन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC. इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, थ्रू विच लर्नर्स कैन एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स लाइक रोबोटिक्स, एक्वाकल्चर, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड सो ऑन दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट. Students benefit from learning at their own pace from anywhere while pursuing other jobs or courses. Online portals like the government National Career Service help people find job opportunities across various sectors from plumbing to accounting. This is how technology has eliminated geographical barriers, allowing people access to knowledge, skill development and jobs in India and abroad. The services to these online portals can be accessed through this link, swayam.gov.in, www.nationalcareerservicencs.gov.in. Let's explore में बता रहे हैं कि things of advancement that have impacted the life of people and communities around you. Talk to elders. Think of an invention that you would like to make to solve a problem. Write its related information on a piece of paper, such as its name, what it does, how it works, sketches or drawings of what it would look like, and so on. Discuss it with your classmate. How are the factors connected? The factors land, labor, capital, entrepreneurship and technology are combined to produce goods and services.
and the proportion of each factor used depend on the product. For example, output from the agriculture, construction and handicraft sectors relies more on labor and thus is labor intensive, while semiconductor chips or satellites require more capital, specialized machinery and are capital intensive. तो बता रहे हैं कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी. एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, हैंडीक्राफ्ट में लेबर ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे सैटेलाइट है, सेमीकंडक्टर है, स्पेशल मशीनरी बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए. These factors complement each other and are interconnected. Or misused factors, production can become inefficient or can be halted. कि अगर आपने ठीक से फैक्टर्स को यूज़ नहीं किया तो आपका प्रोडक्शन गड़बड़ हो सकता है. However, in some cases, new techniques can change the proportion used and output. For instance, increased machine use in agriculture can lower dependence on labor. कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर, मशीन बेस्ड एग्रीकल्चर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करो तो आपको लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी. जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई हमारा जितना भी इंडिया में फार्मिंग होता है सारा लेबर इंटेंसिव है और मैकेनाइजेशन बहुत ही कम है. तो अगर हमने ज़्यादा मैकेनाइजेशन किया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा. Similarly, 3D printing can help revive the dying art form in textiles by producing handloom products at a large scale to serve the market. कह रहे अगर हमने 3D प्रिंटिंग शुरू कर दिया तो हमारे जो हैंडलूम प्रोडक्ट जो डिक्लाइन पर हैं वो फिर से वापस ट्रैक पे आ सकते हैं. द प्रोडक्ट इनपुट्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशंस. अब ये भी एक और फैक्टर है कि भाई जो हमारे इनपुट्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो अलग अलग फैक्टर हैं, ये अलग अलग लोकेशंस पर हैं और फिर उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी. बिजनेसेस कैन प्रोक्योर देम फ्रॉम दीज वेरिड लोकेशंस एंड कंबाइन द इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. Thus, the geographic interconnectedness provides businesses with access to varied input. तो मतलब रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह आपका अगर अच्छा है तो भी हमारा बिजनेस अच्छा होगा. However, production activity sometimes face severe supply chain challenges. The supply chain is a network of individual, important है, क्वेश्चन बन सकता है. Supply chain is a network of individual organization, resources, activities and technology that are involved in the production and sale of. अब भाई आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपको फैक्ट्री तक लाना भी तो पड़ेगा. तो सप्लाई चेन भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट उसका ठीक से करना पड़ेगा, रोड प्रॉपर होनी चाहिए, सामान आपका सही जगह पर पहुंचना चाहिए. इसके अलावा भी कुछ डिसरप्शन है. क्या है? व्हेन अ डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन अकर्स ड्यू टू लाइंग ऑन सोर्स फ्रॉम द फार ऑफ प्लेसेस इंस्टेड ऑफ लोकल इनपुट्स, इट रिजल्ट इन अ हॉल्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वाज द केस ऑफ ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक. कह रहा है कि अगर आपने लोकली मतलब जहाँ आपकी फैक्ट्री है उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह से आपने सप्लाई चेन किया तो भाई कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे कोविड के समय सब कुछ बंद हो गया था तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा. अगर आपने आसपास से लिया होता तो आपका काम रुकता नहीं. तो कोविड के समय कई फैक्ट्रीज बंद इसीलिए हो गई थी. इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल सकता है आफ्टर चाइना इन 2025. नंबर 1 पे चाइना, India number 2. Let's understand yes through a flow chart depicting mobile phone manufacturing. सबसे पहले क्या है? R&D टीम है, दे कंसेप्चुअलाइज में क्या क्या डालना है इस बार फीचर्स. उसके बाद फैक्ट्री सेटअप होगा, लैंड लिया जाएगा या तो रेंट किया जाएगा या खरीदा जाएगा. रॉ मटेरियल में हमें सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होते हैं, वो खरीदे जाएंगे. असेंबली कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर, ये सारे हमें लगेंगे. उसके बाद हमारा फ़ोन रेडी हो गया, उसकी टेस्टिंग लगेगी, फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, क्वालिटी देखनी पड़ेगी और उसके बाद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा. प्रोडक्शन के बाद पैकेजिंग शुरू होगी और पैकेजिंग के बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेल स्टोर्स. जो छोटे छोटे आप देखते होंगे स्टोर्स हर जगह, वहाँ तक पहुँचाना भी है उसको. प्रोसेस ह्यूमन एफर्ट इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू डिज़ाइन and improve product process. For example, team of software, electrical and mechanical engineers along with project managers use their expertise to develop a product. The entrepreneur provides a guidance on how resources should be used. Then, procuring resources like land, factory space, machinery and skilled workers require financial resources. Together, all these inputs are essential, working like puzzle pieces to create the goods and service we rely on. तो हर तरह के लोगों की ज़रूरत है. इंजीनियर भी चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, वर्कर्स चाहिए, फैक्ट्री स्पेस चाहिए, मशीनरी चाहिए,
हर एक चीज़ को कितना क्या यूज़ करना है उसके लिए एंटरप्रेन्योर चाहिए। तब जाकर हमारा पज़ल के अलग अलग पीसेस को जब हम ज्वाइन करेंगे तब जाके हमारा ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। Responsibility towards factors of production. When we produce goods, we use natural resources like land, water, and minerals. However, these resources are limited and can be harmed if we are not careful. For example, in Tamil Nadu, many people earn money by working in leather factory. This helps the local economy, but the waste from these factories can pollute river and soil. In the same way, when old smartphones are not recycled properly, harmful substances like lead and mercury can leak into the ground and water. This pollution can be dangerous for people, animal and plants. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई ये जो फैक्शन है उसको, आपको अगर लेदर रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसका पोल्यूशन आप मत करिए, मोबाइल का आपका ई वेस्ट वगैरह आप मत फैलाइए. That is why it is important for producers responsibly, so that we can meet our needs today without making it harder for future generations to meet theirs. They should try to reduce waste, avoid pollution and protect the environment while making product. तो कह रहा है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं बनाएं, लेकिन आप इन्वायरमेंट को उसमें नुकसान ना करें. हाउ आर लोकल कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड बाय सच एक्टिविटी? डू यू ऑल्सो नो सम प्लेसेज अराउंड यू that have seen water and land degradation over time? So it is important for producers to adopt such. बात है कि भाई अगर आपने किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया तो अभी तो आप काम चला लेंगे, फ्यूचर में आप क्या कर पाएंगे? फ्यूचर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे. रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज. तो जब भी हम इंडस्ट्री में तो कोई भी आप प्रोडक्शन करेंगे वहाँ पे पानी की ज़रूरत है, पानी उसमें गंदा हो जाएगा. तो वो गंदा पानी जब आप पानी में छोड़ रहे हैं किसी वाटर, तो उसको आप ट्रीटमेंट करिए. यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट एज इनपुट. तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम रिसाइकलिंग शुड बी रिवर्ड. तो हर एक चीज़ को हम रिसाइकल ज़रूर करें. जितनी ज़्यादा रिसाइकलिंग होती है उतनी हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए. Apart from land and natural resources, businesses have responsibilities towards their workers and employees. Fairly for their labor होनी चाहिए. Skilled trade तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर उनका डेवलपमेंट किया जाए ताकि उनकी नौकरी बनी रहे. वर्कप्लेस राइट्स एंड प्रोटेक्शन. लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर वर्कर्स राइट्स रिलेटिंग टू द फेयर ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर और पेड लीव शुड बी अडेड. तो ये सारी चीज़ें हमें वर्कर्स को देनी चाहिए. उनको हेल्थ केयर देना चाहिए, उन्हें पेड लीव देनी चाहिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए. सो ये भी सारे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स द ह्यूमन कैपिटल या जो लेबर्स हैं उनके लिए. Businesses are motivated to address social and environmental concerns in their operations to benefit society and biodiversity through corporate social responsibility. ये corporate social responsibility मतलब आप जहाँ पर भी बिजनेस कर रहे हो आपको आसपास के लोगों का, इन्वायरमेंट का, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है. ये बायोडाइवर्सिटी बनी रहे. This includes reducing polluting activity, addressing the well-being of local community, treating employees and customers with respect and so on. ये सब बारे में इसकी बात कर रहे हैं कि corporate social responsibility as a organization, कंपनी क्या होनी चाहिए. India was the first nation in the world to bring corporate social responsibility law in 2014. Important है क्योंकि इंडिया पहला था 2014 में इसको लेकर आया. That mandate companies to spend 2% of their average profits पेड़ काटोगे तो पेड़ लगाना चाहिए. वहाँ के लोगों को आप घर हटाओगे, उजाड़ोगे तो वहाँ के लोगों को घर बना के देना चाहिए. तो जो भी आप वहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हो उसका एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आप ज़्यादा उनके लिए
बेटर चीज़ें आप करके उनको दो. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट भी थ्राइव करे, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी थ्राइव करे. इट शुड बी अ विन विन डील फॉर एवरीबडी. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. ओल्ड एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर प्रेजेंट है, इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ नए फैक्ट्स उन्होंने डाल दिए हैं, तो उसके हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो चांसेस ये हैं कि नए वाली इसी बुक से, इस वीडियो से ही क्वेश्चन बनेगा. दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन. नीचे ये थोड़ी समरी है, यू कैन गो थ्रू दिस समरी.